العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم وقال الله سبحانه وتعالى إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقال الله سبحانه وتعالى والفجر وليال عشر وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشرة رواه البخاري. محترم حضرات سامعین کرام عزیز طلباء، آج ذی قعدہ الحرام کی 27ویں تاریخ ہے، 15 مئی ہے، اتوار کو یعنی پرسوں 29 تاریخ ہوگی۔ اگر 29 کا چاند نظر آیا تو ظاہر ہے کہ اتوار کی مغرب سے ذی الحجہ کی پہلی تاریخ شروع ہو جائے، اور اگر 30 کا چاند ہوا تو سوموار کو 30ویں تاریخ ہوگی، اور سوموار کو مغرب کی نماز اور اذان سے عشر ذی الحجہ کی ابتدا ہوگی۔ یہ عشر ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ جو مہینہ ہے، اس مہینے کی شروع کی جو 10 راتیں ہیں اور 10 دن ہیں، ان کی بڑی فضیلت قرآن اور حدیث سے نقل کی گئی۔ عناوین فی الحال بقرعید سے پہلے 2 ہیں، دونوں قربانی کے متعلق ہیں۔ عشر ذی الحجہ کے بارے میں اور قربانی کے تعلق سے کچھ باتیں انشاءاللہ بھی ہوں گی، اور اگلے جمعے میں انشاءاللہ کچھ باتیں ہوں گی۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے ہم بندوں پر احسان اور کرم کرتے ہوئے سال کے مختلف مواقع سے ایسے افضل دن اور راتیں رکھی کہ ہم ان دن اور راتوں میں اللہ کی طرف رجوع ہو کر عبادت کر کے اللہ کے قریب پہنچ سکتے ہیں، اللہ کے قریبی بندہ اور مقرب بندہ بن سکتے ہیں، اور اپنے آپ کو اللہ کی نظر میں بہتر ثابت کر سکتے ہیں۔ ایسے ایام اللہ رکھے۔ ہفتے میں جمعے کے دن کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ جمعے کا دن سید الایام، عبادت کا دن ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ نے اس کو عبادت کا دن حضرت آدم سے قیامت تک کے لیے ہر قوم اور ہر نبی اور ہر شریعت میں رکھا ہے، جمعے کا دن۔ اسی طرح سال میں رمضان کا مہینہ بڑی فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس کے علاوہ بعض کچھ ایسے دن اور راتیں بھی ہیں جن کو اللہ نے الگ سے فضیلت دی ہے۔ ابھی 2-3 دن کے بعد جو ذی الحجہ کی تاریخ شروع ہوگی، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ نے قسم کھائی،
قسم ہے فجر کی اور ذی الحجہ کے شروع کی 10 راتوں کی۔ اس سورۃ الفجر میں 5 چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے، اس کے بعد ایک اہم بات ذکر کی ہے، ان میں سے ذی الحجہ کے شروع کی 10 راتوں کی بھی فضیلت کا ذکر اس سے ملتا ہے کہ اللہ نے اس کی قسم کھائی۔ حضرت مفتی شفیع صاحب نے معارف القرآن کی تفسیر جو انہوں نے لکھی اس میں لکھا ہے، اس آیت کی تشریح میں ایک ترمذی وغیرہ کی ضعیف حدیث پیش کی ہے ترمذی کے حوالے سے۔ یہ عشرے ذی الحجہ کی راتوں کی عبادت کی فضیلت ایسی ہے جیسے شب قدر کی عبادت کی فضیلت۔ شب قدر ہم جانتے ہیں کہ رمضان میں ہر سال الحمدللہ شب قدر کے بارے میں تقریریں ہوتی ہیں، بیانات ہم سنتے ہیں، ہم کو معلوم ہے شب قدر کیا چیز، کتنی اہم ترین عبادت شب قدر کی عبادت ہوتی ہے۔ خیر من الف شہر کہا گیا، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ایک رات شب قدر کی عبادت ہوتی ہے۔ اب اس روایت کے مطابق عشرے ذی الحجہ کی راتوں کی عبادت، ہر رات کی عبادت کی فضیلت ایسی ہے جیسے عبادت شب قدر کی عبادت کی فضیلت۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور دن کی فضیلت یہ ہے کہ ہر دن کا روزہ 1 سال روزے کے برابر ثواب ہوتا ہے۔ ایک دن کا روزہ 1 سال روزے کے برابر۔ اور عرفہ کے دن کے تو مستقل الگ سے فضیلتیں مذکور ہیں، بڑا مبارک دن ہے عرفہ کا دن جو 9 تاریخ کو ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یوم النحر کی فضیلت، 10ویں تاریخ کی فضیلت مستقل الگ اس کی فضیلت ہے۔ اس میں یادگار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی جو بے مثال واقعہ اور تاریخی چیز ہے، اللہ نے اس کو پسند کیا، قیامت تک کے لیے اس کو سنت قرار دیا۔ تو چند ہی دنوں کے بعد یہ مبارک راتیں، یہ مبارک ساعتیں انشاءاللہ ہم کو ملیں گی۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ رات کی تو عبادت کریں۔ پورے سال اگر ہم نے تہجد نہیں پڑھی ہے، اگر پڑھی ہے بہت اچھی بات ہے، معمول ہونا ہی چاہیے۔ تہجد کی نماز اگرچہ فرض نہیں، واجب نہیں، سنت ہے، مستحب ہے، لیکن اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اب کیوں نہ ہو، ہر آدمی دنیا میں کسی بڑے سے تنہائی میں مل کر کچھ بات کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ بڑے کا مقرب بن سکے، اپنے کام اس سے کرا سکے۔ مقرب بنے گا، اعتماد حاصل کرے گا تو بڑا اس پر بھروسہ کرے گا اور اس کو کام سونپے گا اور اس سے اس کو فائدہ ہوگا۔ اللہ کے سمجھدار ذی عقل بندے اللہ کے محبوب بنتے ہیں جو تنہائی میں اللہ سے گویا کہ ہم کلام راز و نیاز کرتے ہیں۔ دنیا میں اگر کسی سے سب سے زیادہ محبت ہے تو اللہ کی ذات ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو ایمان اس کا صحیح نہیں۔ کیوں نہ ہو، دنیا میں اگر کوئی 100 روپیہ یوں ہی دے دے، 50 روپے، 100 روپے، 1000، 2000، کوئی لاکھ روپے یوں ہی دے دے، ہم بیٹھے ہوں مسجد میں کہیں بھی، کوئی آ کر کہے بھائی 1 لاکھ روپے ہیں آپ رکھ لیجئے، آپ کے کام آئیں گے، یہ بتائیے جس کو دیا جائے گا اس کو اس آدمی سے جو دے رہا ہے کتنی خوشی ہوگی کہ دیکھو مجھے کتنے بیچارے میری مدد کر رہے ہیں، میرے کتنے بڑے مرشد۔ کوئی کسی کو گھر بنوا دے، کوئی کسی کو
दुकान बनवा दे, कोई किसी को जमीन खरीद कर दे दे उसके नाम, उसको कितनी उससे मोहब्बत हो जाएगी। लेकिन हम बंदे ये नहीं सोचते कि ये जो आंखें हैं, ये आंखें कितनी कीमती है। क्या अगर किसी को आंखें ना हो तो पूरी दुनिया की ताकत और दौलत उसको आंखें दे सकती है? नहीं दे सकती, सब जानते हैं। लेकिन आंखें किसने दी हैं? अल्लाह ने दी। कान अगर किसी के ना हो कैसे हम सुनेंगे? कान किसने दिए हैं? अल्लाह ने दिए हैं। अगर जबान ना हो, हम बोल ना सके, कैसे अपने दिल की बात रखेंगे किसी के सामने? क्या कोई दुनिया जबान दे सकती है क्या? या दुनिया के डॉक्टर मिलकर जबान और बोलने की सलाहियत पैदा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। किसने किया? अल्लाह ने। अल्लाह ने इतनी बड़ी बड़ी नेमतें दी हैं कि उतनी बड़ी कोई देने को सोच भी नहीं सकता, न कोई दे सकता है। फिर भी हम अल्लाह से मोहब्बत न करें, फिर भी हम अल्लाह से ताल्लुक न जोड़ें, फिर भी हम रात को सोते रह जाएं और आखिर हिस्से में आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट भी मुसल्ले पर खड़े होकर अल्लाह का शुक्र अदा न करें, फिर भी हम नमाज ना पढ़ें, फिर भी हम अल्लाह का जिक्र ना करें, अल्लाह का नाम न लें। हमारे जैसा ना फरमान ना शुक्रा कौन हो सकता है? बताइए। आज का इंसान जरा जायजा लीजिए, मुसलमान छोड़िए, जो काफिर हैं, जो मुशरिक हैं, वो तो महरूम हैं। अल-अयाज़ बिल्लाह। अल्लाह का एहसान है, करम है कि अल्लाह ने हम सबको ईमान दिया, इस्लाम दिया, कुरान दिया, नबी दिया, रसूल दिया। अल्लाह ने हमको हिदायत दी, जहन्नम से बचने का रास्ता दिखाया, जन्नत तक पहुंचने का रास्ता दिखाया। ये अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है। वरना कितने लोग जहन्नम में जा चुके हैं, अनगिनत लोग। जहन्नम क्या मामूली चीज है क्या? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों से मेराज के मौके से और एक मौके से ख्वाब में, 2 मौके से जन्नत और जहन्नम के सैर किए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो चीज मैं जानता हूं अगर तुम जान लो तो लबकैतुम कसीरा व लज़हिकतुम खलीला, कम हंसो ज्यादा रो। लेकिन आजकल क्या है, लोग मस्त हैं दुनिया में, मरना ही नहीं है, आखिरत में जाना ही नहीं है, कब्र में जाना ही नहीं है, हिसाब किताब होनी ही नहीं है, जहन्नम का कोई अजाब का खौफ ही नहीं है। लापरवाह है, गाफिल है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई चुगली कर रहा है, कोई गीबत कर रहा है, कोई सूद खा रहा है, कोई रिश्वत खा रहा है, कोई किसी को तकलीफ दे रहा है, कोई किसी की जमीन हड़प ले रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को कत्ल कर रहा है, कोई बदमाशी कर रहा है, कोई जिना कर रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई दुनिया भर के जो है झमेलों में और शैतानी कामों में लगकर अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहे हैं, अल्लाह को नाराज कर रहे हैं। कोई फिक्र ही नहीं। अजीब जिंदगी, नादानी की कोई हद ही नहीं है। आज के इंसान कितने नादान है देख लीजिए। भाई दुनिया की आग में जलना कौन पसंद करेगा? लेकिन 70 गुना ज्यादा तेज आग है जहन्नम की। जहन्नम की आग 70 गुना ज्यादा तेज है, जलाने की सलाहियत 70 गुना ज्यादा है इस आग के मुकाबले। जहन्नम की आग में जहन्नमी जब जाएगा तो जहन्नम में जाहिर है सिर्फ आग है, आग की जमीन है, आग के अंगारों की जमीन है, आग की जमीन, आग का आसमान, आग की दीवारें, न उसमें खिड़की है, न उसमें पंखे हैं, न उसमें हवा जाएगी, न उसमें राहत है, न उसमें आराम है। अब जाहिर है कि जहन्नमी जहन्नम में ऐसे होंगे, आंखें जल गई होंगी, दिखेगा नहीं, आग खुद ही काली है, आंखें जल गई होंगी, दिखेगा नहीं, कान जल गए होंगे, सुनाएगा नहीं, ज़बानें जल जाएंगी, बोलेंगे नहीं, और सारे आज़ा जल जाएंगे, जिस्म जलेगा, चमड़े जलेंगे, गोश्त जल जाएगा, हड्डियां जल जाएंगी, दिल जल जाएगा, फेफड़ा जल जाएगा, कलीजा जल जाएगा, जिस्म का जाहिर बातिन हर चीज जल जाएगा। वह बदलना जुनूदन खैर हाल अज़ाब, फिर दोबारा ये सारे अज़ाब बनेंगे। ऐसी चीखता रहेगा,
चिल्लाता रहेगा। सिर्फ आग ही नहीं है, सिर्फ आग ही का अजाब काफी होता, लेकिन याद रखिए सिर्फ आग ही नहीं है, आग के जलने के साथ साथ सांप भी होंगे, बिच्छू भी होंगे, और जहन्नम में फरिश्ते ऐसे ऐसे रहेंगे कि उनको अल्लाह हुक्म देगा कि वो ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून। ये जहन्नमी चिल्लाता रहेगा, जलता रहेगा, सांप और बिच्छू के नोचने की जो है जो जलन है, तकलीफ है, झेलता रहेगा, आहो पुकार करता रहेगा, खून के आंसू बहाता रहेगा। उसी पर वो फरिश्ते जो अल्लाह की तरफ से मामूर रहेंगे हथौड़े मारेंगे, और ये जहन्नमी उस आग के अंगारों वाली जमीन में घिस घिस कर 70 गज नीचे जाएगा, फिर उसको घींच कर उसको खींच करके वो जहन्नम के फरिश्ता जो मामूर है अजाब देने पर, उसको निकाल कर ऊपर करेगा। इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के अजाब हैं, बहुत खतरनाक हैं। जहन्नमी ये तमन्ना करेगा, अरे अल्लाह मौत आ जाए, बार बार मौत को याद करेगा, बार बार चिल्लाएगा, मौत नहीं आएगी, कहेगा अरे अल्लाह तो उनसे मुखातब नहीं होंगे, अल्लाह तो उनकी तरफ नहीं देखेंगे, उन फरिश्तों से कहेगा जो उनको अजाब दे रहे होंगे, ऐ फरिश्तों अल्लाह से कहो हमें दुनिया में भेज दे, हम जब दुनिया में जाएंगे सिर्फ अल्लाह की बात करेंगे, सिर्फ नमाजें पढ़ेंगे, सिर्फ तहज्जुद पढ़ेंगे, रात भर इबादत करेंगे, दिन भर रोजे रखेंगे, एक लम्हे के लिए आपकी नाफरमानी नहीं करेंगे, हमें दोबारा दुनिया भेज दिया जाए। फरिश्तों से अल्लाह कहेगा नहीं नहीं, अब वक्त खत्म हो गया, दुनिया में मौका दिया गया था, दुनिया में तुम्हें बताया गया था, अब दोबारा दुनिया में नहीं जाना है। वो फरिश्ते हजारों साल, लाखों साल, करोड़ों साल हमेशा अजाब में रहेंगे, अजाब बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। कहेंगे ऐ फरिश्ते अल्लाह से कहो थोड़ा सा अजाब कम हो जाए, अल्लाह कहेंगे नहीं अजाब कम नहीं होगा, बढ़ते ही जाएगा। ये काफिरों का, मुश्रिकों का, मुनाफिकों का ये हाल होगा। अब सोचिए जिंदगी मिली है तो इससे बचना चाहिए नहीं बचना चाहिए, इसीलिए अल्लाह ने 1,24,000 को बेचना भी भेजे ताकि बच जाओ। इसीलिए अल्लाह ने रमजान दिया, इसीलिए अल्लाह ने मुहर्रम दिया, इसीलिए अल्लाह ने हज दिया, इसीलिए अल्लाह ने नमाजें दी, इसीलिए अल्लाह ने रोजे दिए, इसीलिए अल्लाह ने सदका ज़कात का हुक्म दिया, इसीलिए अल्लाह ने फजीलतें दी, इसीलिए अल्लाह ने कुरान दिया, इसीलिए अल्लाह ने हदीस दी, इसीलिए अल्लाह ने अपने लिए बंदों को भेजकर बातें बताई ताकि जहन्नम से बच जाओ, जहन्नम से बच जाओ। बहुत खतरनाक है, फिर भी हम ना बचे, फिर भी हम दुनिया में गफलत में हैं, तो कौन क्या कर सकता है बताइए। बहुत अफसोस है आज के इंसान और खास तौर पर मुसलमानों पर, बहुत अफसोस है, बहुत नादान है, ना समझ है, वो समझते नहीं कि आखिर हमें करना क्या है। अक्लमंद वो नहीं है, अक्लमंद वो नहीं है जो वजीर आजम बन जाए, अक्लमंद वो नहीं है जो राष्ट्रपति बन जाए, अक्लमंद वो नहीं है जो बड़ा बड़ा ओहदा और मनसब हासिल कर ले। अक्लमंद वो है, आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल-कय्यिसु मन दार नफ्सा। अक्लमंद वो है जो आखिरत की तैयारी करे, अक्लमंद वो है जो अल्लाह से मोहब्बत करे, अक्लमंद वो है जो कब्र के अजाब से बचने की तैयारी करे और मौत को याद करके नाजायज काम बिल्कुल न करे, सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए जिंदगी गुजारे। हजरत अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कुल आप कह दीजिए इन्न सलाती बेशक मेरी नमाज, व नुसुकी और मेरी कुर्बानी, व महयाय व ममाती मेरा जीना मेरा मरना किसके लिए है, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उस अल्लाह के लिए जो सारे जहां को पालने वाला है। एक बच्चा पालने में माँ बाप की हालत खराब हो जाती है, अल्लाह हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, खरब इंसान, जिन्नात, फरिश्ते, जानवर, हशरातुल अर्द, समुंदर की मखलूकात, खुशी की मखलूकात, जमीन के मखलूकात, जंगलात की मखलूकात, बहरों की मखलूकात, जमीन के अंदर रहने वाली मखलूकात, आसमानों में रहने वाली मखलूकात, और इस तो सारा मखलूकात, अनगिनत मखलूकात को खिलाता है, पिलाता है, सारी जरूरियात पूरी करता है। उस अल्लाह के लिए हमारी जिंदगी भी है, हमारी मौत भी है। ये बात अल्लाह ने अपने हबीब से कहा कि ऐ हबीब आप कह दीजिए सारी उम्मती से, सारे इंसानों से। अब आप खुद फैसला कीजिए क्या हम इसके मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए ये मौके आए हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जो लोग हज करने चले गए उनको अल्लाह ने तौफीक दी, उनको अल्लाह ने इनाम दिया, उनको अल्लाह ने एहसान दिया, उन पर अल्लाह ने करम किया, उन पर अल्लाह ने इनायत की, उनको अल्लाह ने अपनी मोहब्बत दी, उनको हज के लिए भेजा, उम्रे के लिए भेजा, वो मुतबरक मकाम पर गए, वो वहां गए। आज हम नहीं जा सके, दुआ करे अल्लाह हम सबको भेज दे, लेकिन अल्लाह ने सारे इंसानों को हज के कुछ काम दिए हैं, वो हज के कुछ काम दिए हैं। एक हज के कामों में से
कुर्बानी है। इसीलिए हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत बुखारी शरीफ में है कि मा मिन अय्यामिन अल अमलु सालिहु फीहिन्ना अहब्बु इलल्लाहि तआला मिन हाज़िल अय्याम अल अशरा। इन अय्याम अशरा के अंदर अल्लाह को सबसे ज्यादा जो महबूब है वो नेक अमाल इन अय्याम अशरा में है। और एक दूसरी हदीस में सबसे ज्यादा महबूब कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी करना है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है 10 साल आप ने मदीने में जिंदगी गुजारी और 10 साल हर साल कुर्बानी किए और एक साल तो 100 कुर्बानियां की। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी पूरी जिंदगी 2 कुर्बानियां करते थे। एक साहबी ने पूछा कि आप 2 कुर्बानियां करते हैं? फरमाया कि अल्लाह के रसूल ने मुझे कहा है, मुझे वसीयत दी है, मुझे हुक्म दिया है कि ऐ अली मेरे बाद तुम हमेशा 2 कुर्बानियां करना, एक अपने लिए एक मेरे लिए करना। इसीलिए आज सुन लीजिए कि अगर हमें अल्लाह ने वसीयत दी है, अगर मान दिया है, तौफीक दे तो हम अपने लिए करें, अपने हबीब के लिए भी करें, अपने अल्लाह के रसूल के लिए भी करें। अल्लाह के रसूल से मोहब्बत का तकाज़ा है। हम क्या अल्लाह के रसूल के एहसान का बदला दे सकते हैं? कम से कम कुछ तो नमाज पढ़ ले ताकि अल्लाह के रसूल की आंखें ठंडी हो जाए, तहज्जुद पढ़ ले ताकि अल्लाह के रसूल की आंखें ठंडी हो जाए, तहज्जुद पढ़ ले, जिक्र कर ले, दरूद और सलाम पढ़ ले, अल्लाह के रसूल को पहुंच जाए। हम तो कुछ तो करें। मेरे प्यारो, बस 2-3 दिन के बाद ये अशरे अखीरा, अशरे औला, ये ज़ुल्हिज्जा का पहला अशरा आने वाला है। आप सब इस मुबारक जगह और मस्जिद में आप सब दिल के अंदर अहद कीजिए, तय कीजिए, इंशाअल्लाह हम तहज्जुद नहीं छोड़ेंगे। कम से कम तो इन 10 रातों में तहज्जुद नहीं छोड़ेंगे, जिसमें एक तिर्मिज़ी की रिवायत के मुताबिक हर रात की इबादत शब कद्र की इबादत के बराबर करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तौफीक से नवाजे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुर्बानी के लिए हम जब जानवर दें तो हम अपने नीयत को पहले साफ कर दें, इबादत करें अशरे ज़ुल्हिज्जा में, और कुर्बानी के ताल्लुक से बाकी बातें इंशाअल्लाह आइंदा जुमे को और इंशाअल्लाह अल्लाह की चाहत होगी। और एक अहम बात यह है कि अब हम जानवर खरीदेंगे, बाजार में मंडी लगेगी, तो बहुत लोग के दिल में हो सकता है कि अगर हमारे पास जानवर नहीं रहेगा, घर में बच्चे क्या करेंगे, हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे कि देखो इतना पैसा वाला है कुर्बान नहीं करता। बहुत लोग सोचेंगे कि हमारा बेटा सऊदी में रहता है, आने वाला है, वो क्या सोचेगा कि देखो अब्बा ने कुर्बान नहीं। ये सब ख्याल बिल्कुल दिल से निकाल दें। कुर्बानी क्यों करें? इसलिए कुर्बानी करें कि अल्लाह का हुक्म, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम की सुन्नत पर अमल करने के लिए, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने के लिए, अल्लाह को राजी और खुश करने के लिए हम कुर्बानी करें। सिर्फ ये दिल में नियत, बस नहीं यनालुल्लाह लुहूहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुत तक़वा मिनकुम। तुम्हारा कुर्बानी के जानवर का खून और गोश्त वगैरह अल्लाह को नहीं पहुंचेगा। तुम्हारे दिल में क्या नियत है, किस नियत से तुम कुर्बानी कर रहे हो, वो अल्लाह देख रहा है, वही अल्लाह कबूल करेगा। अगर इखलास है, सिर्फ अल्लाह की रजा मकसूद है, तो सारी काम भी होंगे, तुम्हारे रिश्तेदार भी खाएंगे, तुम्हारे बेटे भी खाएंगे, तुम्हारे ताल्लुक वाले भी गोश्त खाएंगे, सब कुछ होगा और सवाब का सवाब भी मिलेगा। और वो जानवर तुम्हारे लिए हर बाल के एवज 1 नेकी और 1 का 10 गुना नेकी, गोया कि जानवर में जितने बाल है उसका 10 गुना ज्यादा नेकी भी मिलेंगी और बहुत से सवाब और फजाइल है। लेकिन अगर हमारी नीयत अगर खराब हुई और हमने नीयत गड़बड़ की तो समझ लीजिए सब हकारत है। गोश्त तो खा लेंगे लेकिन बाकी कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे प्यारो, सबसे पहले आप नीयत को दुरुस्त कर लीजिए कि सिर्फ सबसे ज्यादा जो हमारा प्यारा है, महबूब है, अल्लाह जल्ल जलालहू, उसी के नाम से और उसी के लिए हम जानवर खरीद रहे हैं अल्लाह, और आप ही के लिए हमें कुर्बानी करनी है। और हो सके तो अल्लाह के रसूल के नाम से भी कुर्बानी कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। वाह दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो लोग सुन्नत नहीं पढ़े सुन्नत